Okay, so all the men, are you excited to have a topic on the women? If I say it Yes, out, ma'am. it's not going to be on men. And the topic is like you might have seen that there are lots of beauty contests which go on, right? And do you think that are the beauty contests degrading womenhood? Are the beauty contests degrading womenhood? That is a topic. And now, see, same way, I'm going to guide you a bit about the introduction part. So it would be a very precise one that good morning, all of you. And the topic of today's discussion is our beauty contest degrading womanhood, right? So then also you have to take into consideration, like you might can say that womenhood is being practiced and women have faced, they have been into the four walls throughout their, you can say in the past, we have seen them. They were surrounded in the post walls and they were not allowed to do anything. They were not even given the respect. But with the passage of time, our country got developed and we have seen the changes. Same that women have become, they have come out outside their houses and they are doing wonders, be it employment, be it different sectors, right? Same as one sector, just to, you can say, fascinate it out. It can be good for the womanhood. That is it good that beauty contests are being organized for them? Is it bad? You can go for the goodness that yes, it actually gives the confidence to the women. They can even you can say pamper themselves to the extent. And last third, even you can say it out in this run that women were always worshipped in one or the other cause, and being you can say allowing them to have a beautiful path and showcasing them all over the countries, that is also a way of appreciating the womanhood. But on the other hand, you can say it out, the contests which are aroused being a beauty contest, that can call, or you can say that can make the other women feel degraded because of lots of issues, being racism as one of them. The women don't feel beautiful and they don't feel that they are to that level, and that is why there are many, you can say, things which come in the mindset of the women if they're not beautiful, if they're not that case, right? Second is you can even say it out, the way the contests are being organized, the women have to go for different dressing sense. That might not be a good one, good approach to showcase the woman on the beauty pageants. So it can be both the siders. You can say for the positive side also, you can go for the negative side also. And it's going to be an interesting topic because today the men gonna talk about this topic, and I want good pointers from all of you, right? Because last time when we discussed about women, it was about the women reservation in some of the offices. That is it allowing it out, like it's promoting womanhood or not? And today we are discussing on the other level, and that is beauty contest, degrading womanhood or not. Clear about the topic, Yes, all of ma'am. you? Anyone Ma'am, will Yes, answer topic ma'am. now? name reverse to Are beauty contests degrading womanhood? The same way, whenever you start, no, according to me, beauty contests are not degrading womanhood. Say, or you can say it out, yes, beauty contests are degrading womanhood. So it's your personal approach wherever you have to go with that, right? And then you have to go good pointers, justify it out in this case. It's going to be an easy one, not a tough topic, but it requires a lot of subjectivity. Fine. We'll keep it for a short time only, and 3 minutes. I'm going to start to note down as many points as you can. Okay, let's get started. Note down the pointers.
Yeah, okay. I think today Naveen has been there for since long. I think has not joined. So Naveen, you can go for the introduction today. And Abhishek, can you conclude today? Yes, ma'am. Okay. Okay, so Naveen, go for the introduction. It's already the time has up. So just start it now. Good afternoon, friends. Thank you for giving me this opportunity. Today, our topic of discussion is Are beauty contest degrading womanhood? As we have all seen that women's काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में भी एक्सेल कर रही है, तो उसी में एक और फील्ड है जो कि है ब्यूटी कॉन्टेस्ट. सो वी शुड डिस्कस कि क्या ये वुमेनहुड को डिग्रेड कर रहा है या नहीं कर रहा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स. So this is our topic today. With this, I open the house for discussion. आई डोंट थिंक कि जो वीडियो कॉन्टेस्ट है वो वुमेन को कम कर रहा है, क्योंकि अगर हम देखें बहुत सारी जो बहुत सारी विनर है कॉन्टेस्ट की, लाइक प्रियंका चोपड़ा, सुष्मिता सेन, ये अगर वो जीतती हैं कॉन्टेस्ट को तो उनके लिए बहुत सारे मल्टीपल सोर्स खुल जाते हैं इनकम के. जैसे हमने देखा कि जी बहुत बड़ी एक्टर है, सारी पहले वीडियो कॉन्टेस्ट जीत के आई थी, अब वो बहुत अच्छी एक्टर है और बहुत अच्छा कमा रही है, अपनी फिल्म काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है. तो मुझे नहीं लगता कि उनको डिग्रेड करता वुमन. I support Dheeraj. Like in beauty contest, there are many women which comes from third world country, like poor country, और वो वहाँ पे जीत भी रही है और अच्छा परफॉर्म कर रही है. तो बाकी जो वुमेन है जो जिन्हें ये लगता है कि वो लोग थोड़े से रेसिज्म के शिकार हैं या फिर वो जो लो फील कर रहे हैं, तो इसे वो ये जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट है ये प्रमोट करता है उन्हें ऊपर आने के लिए, और अपना जो स्किल है या फिर और भी चीजें उन्हें शोकेस करने के लिए, अपना जो कॉन्फिडेंस है वो शोकेस कर सकते हैं, और एंड दे कैन अर्न मनी ऑल्सो. Yes, I agree with you. I agree with you. जैसे कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में ऑर्डिनरी गर्ल्स है वो भी अपना एक सेलिब्रिटी स्टेटस ले सकती है, जैसे कि उसको एक करियर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें तो मानुषी छिल्लर जो कि एक मिस वर्ल्ड रही थी, वो पहले एक मेडिकल स्टूडेंट हुई, जो कि अभी वो फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर अपॉर्चुनिटी उसको मिल गई है. मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट है उसमें खाली ब्यूटी के ऊपर ही, जैसे मिस वर्ल्ड या फिर मिस इंडिया कंपटीशन हो रहा है, तो उसमें खाली ब्यूटी पर फोकस नहीं किया जा रहा है, उसके साथ साथ ही जो महिलाएं हैं उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर, उनकी स्किल्स के ऊपर या फिर उनकी जो बिहेवियरल स्किल्स हैं उनको भी काफी अच्छे से देखा जाता है. इससे एक जो वुमेनहुड है उसको एक मोटिवेशन मिलता है कि हम भी कुछ अच्छा कर सकते हैं इस फील्ड के अंदर आने पर. हाँ, और इसके ऊपर और एक चीज है कि काफी सारे लोग बोलेंगे कि जो आउटफिट्स मतलब अच्छे नहीं है, ये है वो है, लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि
आउटफिट्स का जो स्टैंडर्ड है वो समय के साथ हमेशा इवॉल्व होता रहता है। 40 years बैक हमारे माँ बहन अगर स्कर्ट लगा के भी चले तो हम बोलेंगे ये कितना खराब आउटफिट है, लेकिन आज के समय में ये आउटफिट ठीक है। तो आउटफिट हमेशा समय के साथ इवॉल्व होता रहता है, तो इसको हम खराब और सेंस में ना लें। डेफिनेटली इसके अंदर एक ये भी कहा गया है कि एक अभी रिसेंटली ये भी बोला गया है कि जो मिस वर्ल्ड का कंपटीशन है उसमें एज का कोई क्राइटेरिया नहीं रहा। पहले एक क्राइटेरिया था लेकिन उसको अब हटा दिया दिया है, तो इससे काफी और मोटिवेशन मिल रहा है महिलाओं को। ओके, एक जो मैं देख अरे सकता हूँ कि जो कि एक डिग्रेड कर रहा है वुमेनहुड को, वो है जो माइंडसेट जैसा हो जाता है। लाइक अगर बच्चों में देखा जाए तो ऐसा माइंडसेट बन जाता है कि जिनका लुक्स ज्यादा बेटर है उनको ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी, या फिर वैसा सोसाइटी में उनको ज्यादा बूस्ट मिलेगा, जिसके वजह से क्या होता है वो स्किल सेट से ज्यादा अपने लुक्स पे ज्यादा ध्यान देती है। तो ये एक डिग्रेडिंग फैक्टर है वुमेनहुड को लेके। एक और मैं डिग्रेडिंग पॉइंट ऐड फैक्टर की करना बात चाहता हूँ, करना मैं चाहता पॉइंट हूँ। ऐड करना चाहता हूँ। जैसे हम देख रहे हैं, जैसे हम जब भी किसी वुमन को देखते हैं कि ज्यादातर ये होता है सोसाइटी में कि वो अपने जो मेन उसके जो विनर हो उससे कंपेयर करता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। कि वो कहता है कि ये उससे अच्छी कम कम ब्यूटीफुल है या क्या है, मतलब ये एक इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स डालता है सामने वाली वुमन में। तो ये भी एक वे है कि वो डिग्रेड कर रहा है। वो एक और एक चीज वुमेन लाइक के अंदर ब्यूटी एक समझदारी होनी चाहिए कि वो ओके ब्यूटी कॉन्टेस्ट जो डेफिनेटली होता ऑन है द अदर हैंड वो वी ब्यूटी कैन के सी साथ कि साथ ये अदर चीज को भी प्रमोट करता है। लाइक वहाँ पे हम लोग देखते हैं अदर मेकअप आइटम या क्लॉथ्स हो गया, उनका भी ब्रांडिंग होती है, प्रमोशन होता है। तो अदर वोमेन जो होती है वो भी स्टेप में आ जाती है और वो फिर उसी के पीछे भागने लग जाती है, जो कि एक्स्ट्रा उनके ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन के रूप में काम करता है। और वो जो मनी वो अलग जगह पे यूज कर सकते थे वो इन चीजों में यूज करने लगते हैं। तो ये एक आई थिंक वोमेनहुड को अफेक्ट करता है। Yes, I agree with you, आयुष। कुछ बट ऑन द लड़कियां क्या होती अदर है हैंड जो वी कैन सी young कि ये girls कॉन्फिडेंस भी जो बूस्ट अपने करता है काफी एजुकेशन को वुमेन्स भी का। छोड़ देती है इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट के रेस में। और मुझे लगता है कि जो यंग यंग जनरेशन है वो अब अपने आइडल को देख के उनकी तरह बनना चाहती है। तो वो कितनी बार ऐसे बहुत बहुत पेनफुल सर्जरी की वो भी करवा लेती है जो उनकी जरूरत नहीं होती। मतलब अपने नेचर ब्यूटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देके वो सर्जरी करवा लेते हैं कि ताकि मैं अपने जो आइडियल है उनकी तरह बन सके। तो ये भी थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। बिल्कुल, और ऐसी जैसे सर्जरी करवाने से उनपे जैसे काफी वेस्टर्न ज्यादा कंट्रीज में बॉडी हम लोग पे इफेक्ट्स पड़ जाते हैं। हम्म ऑन द अदर हैंड वी जैसे कैन आल्सो वेस्टर्न सी कि इससे कंट्रीज में हम लोगों कॉन्फिडेंस में के पास कुछ बूस्ट एग्जांपल्स आता है है, उन लड़कियों का जैसे जो कि इन जैसे कि ब्यूटी किम कॉन्टेस्ट कार्दाशियन ये का सब भी में एग्जांपल है। पार्टिसिपेट कर। उसको हम लोग लुक अप करने की कोशिश में हमारे फेशियल में अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट्स करने जाते हैं और उल्टा वो हमें आफ्टर इफेक्ट्स हो जाते हैं। तो ये सब करना ठीक नहीं है। और बाकी जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट का ऐसा कोई एजेंडा नहीं होता है कि वो वुमेनहुड को बिल्कुल ठेस पहुंचाने के लिए ब्यूटी कॉन्टेस्ट करवा रहे हैं। उनका मतलब ये होता है कि वो एक तरह से उनको मोटिवेशन दे के हाँ भाई हम पर्सनैलिटी भी डेवलप करेंगे, आपकी बिहेवियरल स्किल्स भी डेवलप करने का मौका मिलेगा आपको। तो एक तरीके से ये नहीं है कि वुमेनहुड को नुकसान हो रहा है उससे। Yeah, also on the other hand, we can see that there are so many sectors where women are excelling. Now, this is just one another section where these things are happening. So इसको कुछ अलग से देखने का जरूरत नहीं है, वैसे भी हम लोग सोच सकते हैं। बहुत अलग अलग फील्ड्स है, ये भी एक अलग फील्ड है, तो इसको हम लोग वुमेनहुड से कंपेयर करें ही। बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। जो वुमेन है उनको भी आजकल सभी एजुकेटेड है, वो समझते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो इससे ज्यादा अफेक्ट नहीं होंगी जहां तक मुझे लगता है। आजकल ये भी देखा जा रहा है कि जो जो वुमेन है अपने आइडल को देख के सिर्फ अपनी फेशियल फीचर्स या अपनी बॉडी पे ज्यादा वो करती है, फोकस करती है। लेकिन अगर हम वुमेन की बात करें उससे बहुत अच्छी चीज जैसे अपनी कम्युनिटी वो अपनी बोलने की स्किल कि कैसे किसी और से बिहेव कर रहे हैं उनको पे कम ध्यान देते हुए सिर्फ अपने फेशियल फीचर्स और अपनी बॉडी पे ज्यादा वो करते हैं, फोकस करते हैं अभी, ना कि अदर चीजों को इग्नोर कर देते हैं। एक डेफिनेटली पॉइंट मैं धीरज ऐड आई करना एग्री, चाहूंगा यहाँ बट पे इससे एक पॉइंट डिग्रेडेशन क्या की अगर ऐड करना बात चाह करें रहा तो हूँ कि क्या होता है कि कुछ हाँ, लड़कियां कुछ गर्ल्स जो है ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने के चक्कर में या फिर कुछ रिलीजियस या फिर कल्चरल सेंटिमेंट्स है उनको गिव अप कर देती है, या जो उसी मतलब उसी दौड़ में शामिल हो जाती है। या हाँ धीरज के यस पॉइंट पे एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा था कि ये जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है इससे जो एक इमेज बनता है एक ब्यूटीफुल लड़की का, उससे एक फायदा क्या होता है कि लड़कियां जब अपने बॉडी पे वर्क करती है तो फिटनेस पे ध्यान देती है,
हेल्थ हेल्थ बढ़िया होता है उस लड़की का, ये सारा बेनिफिट्स आता है जो कि जनरली हम लोग को पहले देखने को मिलता था कि हेल्थ पे या फिटनेस पे उतना ध्यान नहीं देती थी लड़कियां। बट नाउ डेज वी कैन सी कि जिम ये सब जाने में प्रमोशन काफी प्रमोट हो रही है, लड़कियां भी जिम जा रही है, ये सब हो रहा है। तो इससे फिटनेस सिर्फ उनका मेंटल फिजिकल फिटनेस नहीं आ रहा है, उसके साथ साथ मेंटल फिटनेस भी काफी बूस्ट हो रहा है। तो ये एक फायदा है इसमें। मैं अजय के पॉइंट में ऐड जो करना चाहता हूँ। जैसे अजय ने मार्केटिंग का बात किया रिलीजियस मार्केटिंग का और जो जो कंपनी कल्चर है वो होता है अपना वुमेन का, लाइक इन इन मुस्लिम कम्युनिटी दे पुट बुर्का और नकाब एंड इवन दे गो फॉर द ब्यूटी कंटेंट दे हैव टू रिमूव दैट। तो ये एक इक्वलिटी को प्रमोट करता है कि हर वुमेन फ्री है अपने फेस को या फिर जो भी वो चाहे उनको रिवील करने के लिए। तो ये एक अच्छा स्टेज है उनके लिए, ताकि ये जो गलत ट्रेडिशन और कल्चर से जो उनके अगेंस्ट चला आ रहा है उसको हटाने का भी एक सोर्स हो सकता है। लेकिन ये एक गलत ट्रेडिशन और कल्चर नहीं है, लेकिन वो तो उनका एक कल्चर की बात है कि वो बुर्का पहनते हैं, तो उससे यस बट हमको इस पे यस डिस्कस नहीं बट करनी बट चाहिए। डेयर इम्प्रूव द वुमेन टॉपिक। हैव द राइट, दे कैन चूज व्हाट एवर दे वांट। मैं जो ऐसा तो नहीं कि हर एक आदमी नवीन उसको की बात थी कि जो वो कर रहा है। जैसे वुमेन है फिटनेस तरफ इंकरेज हो रही है, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि कितनी बार हमें ये भी देखा गया है कि जो वुमेन है अपनी जो उनकी डिजायर बॉडी शेप है उसको पाने के लिए बहुत एक्सट्रीम तक पहुंच जाती है फिटनेस में, कि वो कुछ नहीं खाती कुछ नहीं पीती सिर्फ डाइटिंग करती है वो और स्टार्वेशन का शिकार हो जाती है। तो ये थोड़ा बुरा इम्पैक्ट भी डालता है उनकी मेंटल हेल्थ पे, उनके उनमें बहुत ट्रॉमा देता है वो। तो ये भी इससे एक्सपेक्ट है कि वो अपनी बॉडी शेप को वो करने के लिए बहुत बहुत एक्सट्रीम तक पहुंच जाती हैं। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है इसका। All the points done today. When you have to speak in women, you don't have points. If you have to speak on technical and all that, you guys don't speak. Wow, wonders, right? I'm waiting. Okay, today I'll give chance to everyone to conclude first, right? Because one thing I want to tell you, whenever such topics are there, I'll tell you the domains also which you have to target after your conclusions, okay? So I can start from, I think, Abhishek, sorry. Abhishek, you can start with the conclusion and then I'll tell the other person. Okay, Abhishek, go ahead. So I think we are able to get a mixed reaction. I think some of the people are in support of it and some of are in against of it. लेकिन हमको इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि अगर लड़के लोगों को अपना बॉडी शो ऑफ करने का एक चांस मिल रहा है, लड़की लोगों को भी अपना एक फिजिक्स शो ऑफ करने का चांस मिलना चाहिए, और इसको खराब नजरिए से ना देखकर इसको एक मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो करना चाहिए, ताकि उनका भी एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू का सोर्स आ पाए। ओके मैम। Okay, next I will go for Naveen. Thank you, friend, for giving me the opportunity to conclude. So we had a good discussion where we discussed about so many factors like ये कैसे डिग्रेड कर रहा है और कैसे डिग्रेड नहीं कर रहा है। सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट कि कैसे डिग्रेडिंग है ये। सो फर्स्ट थिंग विच वी सॉ कि इससे रेसिज्म और ये सब देखने को मिलता है। जो लड़कियां उतनी खूबसूरत नहीं है उनके मन में एक सेंस ऑफ सेंस एक मतलब रेसिज्म का भाव आता है। और साथ ही साथ हमने देखा कि जैसे धीरज ने बोला था कि अगर बॉडी फिगर को लेके कोई लड़कियां काफी ज्यादा एक्सट्रीम 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 केसेस पे चली जाती है, जो कि जैसे डाइटिंग ये सब करने लगती है। हमने भी टॉक्ट अबाउट कि कैसे ये डिग्रेडिंग नहीं है, ये एक मतलब कॉन्फिडेंस देता है, और ये सारा पॉइंट्स पे हम लोगों ने बात किया। सो थैंक यू। Okay, Yatendra, go for the conclusion. So the topic is are the beauty contest degrading the womanhood or not? तो हमारा ओपिनियन ये है कि जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट है वो वुमेनहुड को वो नीचा महसूस नहीं होने देता है, बिकॉज क्योंकि जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट है उसका ये मुद्दा है कि वो उसका कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि वो जो वुमेनहुड है उसको ठेस पहुंचाने का जो मुद्दा हो। लेकिन इससे जो वुमेन है उनको काफी सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, लाइक वो फिटनेस भी इम्प्रूवमेंट होता है, उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी इम्प्रूवमेंट होती है। ब्यूटी कॉन्टेस्ट का मतलब ये नहीं कि वो खाली ब्यूटी के ऊपर ही फोकस करे, उसके साथ साथ वो पर्सनैलिटी, उसकी स्किल्स, उसकी बिहेवियर स्किल्स को भी फोकस करता है। और इससे काफी सारी महिलाओं को एक मोटिवेशन मिलता है कि ताकि वो अपनी फिटनेस पर ज्यादा ध्यान दे, अपनी मेंटल स्किल पर ज्यादा ध्यान दे। अगर कोई ब्यूटी कॉन्शियस से नीचा महसूस करता है तो उसको समझना चाहिए कि ये एक छोटी सी बात है, इतनी बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि किसी भी इंसान को उसके
फेस से जज नहीं किया जा सकता है, उसकी स्किल्स या फिर उसकी पर्सनैलिटी से जज किया जाता है। Okay, Dheeraj. Good afternoon, everyone. I glad that I got the opportunity to conclude the discussion. So the topic given to us is are beauty concept degrading womanhood. So here we discuss the both its positive side and negative side. So if I want to conclude first, yes कि ये डिग्रेड करती है, तो इसमें हम बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करें। जैसे हमने देखा कि कितनी बार जो ये वुमेन है अपने आइडियल को की तरह दिखने के लिए बहुत सारी पेनफुल सर्जरी को के अपने आप पे करवा लेती है, जो उनके लिए बहुत बुरा होता है हेल्थ के लिए या ये मेंटल हेल्थ के लिए। और कितनी बार हमने देखा है कि जो लड़कियां थोड़ी कम ब्यूटीफुल समझती है, बनाकर उनमें इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि वो उनको लगता है कि हम इतने सुंदर नहीं है तो हमसे दोस्ती नहीं करेगा, या इस तरह की उनमें मेंटल प्रॉब्लम आ जाती है। और ये इसमें क्या होता है कि जो वुमेन है वो अपनी नेचुरल ब्यूटी पे कम फोकस करती है, वो ज्यादातर ये मेकअप वगैरह पे ज्यादा डिपेंडेंट हो जाती है और अपने आप की जो नेचुरल ब्यूटी है उस पर कम फोकस करती है। और अगर इनका दूसरा साइड देखे कि नहीं ये डिग्रेड नहीं कर रहा, तो इसके हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जैसे बहुत सारी विनर हैं जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट किए हैं। तो हमने देखा कि जैसे प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता है, इन्होंने बहुत कुछ अचीव करा है आफ्टर द विनिंग द ब्यूटी कॉन्टेस्ट। शो दे उन्होंने अपना बहुत अच्छा जो करियर है वो स्टार्ट करा है। और जो ये इस तरह कॉन्टेस्ट है ये वुमेन को स्टेज देते हैं कि अपनी स्किल को शो करने के लिए, क्योंकि आज ये ब्यूटी करियर में सिर्फ ब्यूटी को ही ना देख के उनकी अदर स्किल को भी देखा जाता है कि कैसे वो अपने आप की सोच रही है, कैसे क्रिटिकल थिंकिंग है, या फिर कैसे उसके विचार है सोसाइटी को लेके। तो मुझे लगता है कि इस तरह के हम देखेंगे तो वो थोड़ा कम इम्पैक्ट करता है। थैंक यू। Okay, I think next can be Ayush. तो थैंक यू एवरीवन। हमने डिस्कस किया कि कैसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट डिग्रेड करता है वोमेन हुड को या फिर प्रमोट करता है। तो हमने इस पे दोनों पार्ट पे डिस्कस किया, लाइक कैसे प्रमोट करता है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट एक प्लेटफॉर्म हो सकता है या होता है जहाँ पे वुमेन फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट रिलीजन आके अपना टैलेंट, अपना स्किल शो करते हैं, और बाकी जो वुमेन है वो इन्हें देख के एक लाइक उन्हें ये लोग प्रमोट करते हैं, वो भी आगे आए और उनका जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट करते हैं। सेकेंड थिंग कि ये जो ब्यूटी कंटेस्ट होता है ये इक्वलिटी को प्रमोट करता है इन वोमेन, लाइक इवन द वोमेन come from different religion and culture, they can come out from their old tradition and they can adopt the new change or anything they want. और टॉकिंग अबाउट द निगेटिव पॉइंट, तो इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट को देख के बहुत सारे यंग लड़कियां या फिर वुमेन होती है, वो लोग उनमें एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि दे आर लेस ब्यूटीफुल और दे हैव नॉट अ वेरी गुड बॉडी। तो ये एक उनका जो मेंटल स्टेट है उनको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। सेकेंड थिंग, बहुत सारी लड़कियां होती है वो ब्यूटीफुल होने के कारण बॉडी सर्जरी को अडॉप्ट करती है, जो कि एक बैड हेल्थ को उनके हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है। उसके बाद ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट जो होता है वो एक प्लेटफॉर्म होता है टू प्रमोट अदर थिंग लाइक मेकअप आइटम और क्लॉथ। तो ये एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है बाकी वोमेन पे, लाइक वो लोग भी चाहते हैं कि हम लोग अच्छा मेकअप का सामान या फिर अच्छे क्लॉथ पहने, तो एक्स्ट्रा उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है जो कि उनके वुमेनहुड को अफेक्ट करता है। और वो जहाँ पे इन पैसों को अच्छे जगह एक्सपेंस कर सकते थे वो लोग इन पे ज्यादा फोकस कर लेते हैं। तो आई थिंक कि दीज आर द पॉइंट वी हैव डिस्कस एंड थैंक यू। Okay, Naveen, sorry, Ajay, you are left. Okay. Hello friends, we have discussed very good discussion here. The topic was are the beauty contest degrading women. इस टॉपिक पर हम दोनों पॉइंट्स पर बात। तो अगर पॉजिटिव पॉइंट्स की हम बात करें तो जैसे कि पॉजिटिव पॉइंट्स ये कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट जो है वो वुमेन को डिग्रेड नहीं कर रहा है। जैसे कि ये इसके एक पॉजिटिव पॉइंट्स है कि ये गर्ल्स को शोकेस करने के लिए, टैलेंट को शोकेस करने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। और इसमें जो एक ऑर्डिनरी लड़की भी है वो अपना एक सेलिब्रिटी स्टेटस मिल जाता है। जैसे कि कुछ लड़कियां होती है जो कि मिस वर्ल्ड या मिस इंडिया रही हुई है, जो उनको भी एज ए कैरियर उनको फिल्म इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ये it helps to them realize their inner self and confidence। और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ प्रोवाइड
मेंटल हेल्थ एंड जो अब कुछ नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं, जैसे कि ये वुमनहुड को डिग्रेड कर रहा है। जैसे कि इसमें कुछ लड़कियां जो होती है कि कुछ लोग लड़कियां नेगेटिव इसको नेगेटिवली ले लेती है। जैसे कि रेसिज्म की हम बात करें तो कुछ लड़कियां इसका शिकार हो जाती है, और कुछ लड़कियां इस कंपटीशन या ब्यूटी कॉन्टेस्ट के चलते अपने कैरियर, जो भी एजुकेशन कैरियर होता है, उनको छोड़ देती है। और कुछ लड़कियां जैसे कि एक्स्ट्रा ब्यूटी इसके चक्कर में जो सर्जरी होती है या फिर कुछ अलग तरह की मेडिकेशन ट्रीटमेंट लेती रहती है, तो वो उनकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पर भी नेगेटिव इफेक्ट करता है। थैंक यू। All of you, just tell me one thing. I've already told you number of times. Ending और introductory कैसी होनी चाहिए? क्या सारे मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कंक्लूजन करने के लिए, या फिर इट शुड बी वेरी न्यूट्रल वन? व्हाट वाज द कंक्लूजन? जीटी कर रहे हो कि जीटी कर रहे हो? क्या कर रहे हो? जीडी कर रहे हो ना? जीडी में कंक्लूजन किस तरह से होता है? वहां पे एक सिंगल पॉइंट पे पहुंचना, जीटी वाज दैट। यहाँ पे तुम कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? जीडी में तुमने क्या करनी थी चीज कि कंक्लूजन न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल किस तरह से होता है? इट इज लाइक कि अगर मैंने आपको एक एक पॉइंट पे बाद में आते हैं, वुमेन की बात हो रही है, पहले आप लोगों ने जो डिस्कस किया दैट इज डन। सो कंक्लूजन शुड बी लाइक ब्यूटी पेजेंट्स आर कंडक्टेड एवरी ईयर और फ्रॉम डिफरेंट डोमेन्स दे आर बीइंग कंडक्टेड, एंड वी मस्ट से दैट एवरी कॉइन हैज गॉट टू साइडेड। सो ऑब्वियसली देयर आर पॉजिटिव साइड्स आल्सो एंड देयर आर नेगेटिव साइड्स ऑफ आल्सो, where it can degrade the womanhood, it can not degrade the womanhood. Some of the best pointers we have discussed today, we had an overall discussion, but I would like to sum up that it depends, we should take, every female should take their educational qualification, everything into run, and beauty pageants can only encourage. These should be meant for encouragement for all, you can say, even it for the, you can say, for large sizes to, you can say, to the small sizes, like women from all the sizes should feel comfortable and they should not be meant to demean anyone. Only then such contests are kind of a progress for our country also. कैसा कंक्लूजन होना चाहिए था कि ये सारे पॉइंट्स बताने को बोला था कि पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठे ही बोल दो अब सारे? क्या बोला था मैंने? आई डोंट नो व्हाई यू गाइस की याद ही नहीं है किस तरह से जीडी करनी थी, नहीं करनी थी, कुछ भी नहीं याद है। उसके बाद पॉइंटर्स की बात आती है। एक तो अवश्य के बीच में नहीं बोलते लड़की लोगो लड़के लोगो, दीज आर वेरी इनफॉर्मल स्लैग्स इफ यू विल स्पीक इन इंट्रोडक्शन। और अगर आप जीडी में बोलोगे, जीडी में आई टेल यू एवरी टाइम, आज इनफॉर्मल नहीं होना चाहिए। आज धीरज का ठीक था, धीरज का कंक्लूजन भी बेटर था सबसे। आई एम सरप्राइज्ड बिकॉज एवरी टाइम आई यूज्ड टू दिस टेल हिम दैट आज ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी, बट फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज राइटिंग द कंक्लूजन, नेचुरल, लेस फोकस, अचीव, और उसने बोला भी छोटा, क्रिटिकल थिंकिंग हो जाएगी, स्टेज है वो स्किल कर पाएगा, दैट इज ओके। सबसे लंबा आयुष था। आयुष पॉइंटर्स अच्छे थे पर कितना लंबा है, सारे पॉइंट्स बोल दिए, सारी जीडी ना, जैसे अकेले आयुष नहीं करनी थी जीडी, उसे सारी जीडी कंडक्ट कर दी, वो चीज गलत थी। धीरज का भी देन इट वाज अजय। अजय तो तुम्हें समझ ही नहीं आया, अजय एकदम से कंफ्यूज ही हो जाते हो, पॉजिटिव नेगेटिव। अजय सोच रहा है कि मैंने क्या बोलना है, मैम पॉइंट याद नहीं आ रही क्या बात। पॉइंट याद करने क्यों है कंक्लूजन में? इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में तुमने सारे पॉइंट डालने होते हैं, इज इट सो? तभी मैंने सबसे कंक्लूजन कराया आज, क्योंकि तुम्हें यही नहीं याद कि इंट्रोडक्शन। नवीन का जो पहले अच्छा होता था सारा खत्म हुआ पड़ा है। आई डोंट नो, नवीन ने जीडीज नहीं लगाए काफी टाइम से, इसलिए वो कुछ नहीं याद है। नवीन, इट वाज आई थिंक द वर्स्ट ऑफ ऑल द जीडीज आई हैव सीन ऑफ योर्स। बिल्कुल अच्छी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यस मैम, वो फीवर था 1-2 दिन से, आज भी सही फील, वर्ड ही स्लिप कर जा रहा है माइंड से, वो बोल रहा है वर्ड स्लिप कर जा रहा है। कोई डी ग्रेड में उसने बॉडी फिगर एक्सप्लेन करके, it should be, see you guys have to learn from these things. मैं I should say आज बेस्ट ऑफ ऑल धीरज था, जिसकी मैं रोज कंप्लेन कर रही हूँ, रोज। धीरज मेरे को कितनी बड़ी, मैं रोज बोलती हूँ ना, रोज मैंने धीरज के लिए जीडी और जीटी में नेगेटिव बोलना है, और पहली बार मैं सिर्फ धीरज के लिए अच्छा बोल रही हूँ क्योंकि धीरज का बेस्ट था इनमें से। अब नेक्स्ट अभिषेक का तो मिक्स्ड रिएक्शन, कभी भी अभिषेक यू नेवर स्टार्ट जीडीज कंक्लूजन लाइक दैट। इट इज अ मिक्स्ड रिएक्शन, इट इज लाइक पॉजिटिव नेगेटिव, लड़की लोगों को लड़के लोगों को दिखाने का चांस मिलता है, लड़की लोगों की बॉडी शो कर सकते। यू कैन नॉट स्पीक सच लाइन्स, यू नो, यू विल बी एलिमिनेटेड एट दैट रन। We need to measure our words, हमें बोलना है, you should say it out that the same way it is giving equality, the way it was for the women, they were bounded in the 4 walls, but now through beauty contest they have come forward, now able to see on the live shows and everywhere, and that has gone given a good spark. And obviously beauty contests have good also and bad also, so we should learn from the good and we should improve the bad. That is all. Conclusion क्या होता है भाई?
उसके बाद नवीन का था, जो नवीन का तो गलतियां थी। यतेंद्र का फिटनेस मॉडल पर्सनालिटी, यतेंद्र नॉट टू गुड, शॉर्ट था ये ठीक था, लंबा नहीं था, पर पॉइंटर्स नहीं अच्छे थे, ठीक है, ये सारे थे। अब मैं आ रही हूँ सिंगल पे। जब देखो ऐसा टॉपिक आ जाए ना, चाहे विमेन पे आ जाए कोई चीज, कुछ टॉपिक जैसे आयुष की पॉइंट्स अच्छे थे, जैसे टारगेट करना, फिजिकल स्ट्रेस, फिजिकल हो रहा है बॉडी पे, स्ट्रेस हो रहा है, कैसे हो रहा है फिजिकल स्ट्रेस, चेंजेस करवा रहे हो बॉडी पे, है ना, दे गो फॉर लॉट्स ऑफ, यू कैन से लिप सर्जरीज आर देयर। आप एग्जांपल से, किस इंसान ने आज एग्जांपल दिया है, एनी पर्सन, कितनी सेलिब्रिटीज का तुम लोग को पता होगा, डू यू गिव एग्जांपल्स? जैसे मैंने दिया था उनका जो विनर है, प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता, इनका एग्जांपल दिया था। सिर्फ वो कि आप सिंपल बोलो कि वर्सन भी हुआ है रिसेंटली, किसी की आई डोंट नो रिमेंबर द नेम, उसकी डेथ हो गई ड्यूरिंग द सर्जरी शी हैज डन, शी वाज कैरिंग ऑन द सर्जरी एंड शी डाइड इन बिटवीन। थिंक अबाउट दोस थिंग्स। आईज की सर्जरी, देयर वाज अ गर्ल हु यूज्ड टू गेट लॉट्स ऑफ टैटूज ऑन हर बॉडी, उसने क्या किया, अपनी आंख में भी टैटू करा दिया और उससे वो ब्लाइंड हो गई। mean to say people are so much mad now. It is the same way you should say it out कि women को लेना चाहिए beauty contest and all that should be handled only as a competition, not as a mental pressure. लोग क्या करते हैं, mental pressure की तरह करते हैं handle को। उससे physical body पे stress पड़ा, mental stress पड़ा। mental stress कैसे पड़ा, लोग अगर सपोज करो किसी ने विन आउट नहीं किया, सारा पैसा लगा दिया था, डिप्रेशन में चला गया, आइसोलेशन में चला गया। और मेंटल स्ट्रेस कैसे पड़ता है आप पे, आप कंपीट करने की कोशिश करते हो कि मुझे ही जीतना है, यू कैन गो टू एनी नेक्स्ट लेवल, किसी का खराब करने पे ये भी आप जा सकते हो, you can go to any run. You have seen in the beauty pageant sort of like Fashion was that movie, you could go, that is spreading awareness that lots of incidents even do come happen with the women and then they're not able to face the people. So you understand, you have to be very broad minded in it. It is not like how can we name all such things and all that, it's not like that. You can depict it out कि क्या क्या issues आ रहे हैं। उसके बाद मैं ये बोल रही हूँ body की dissatisfaction, female then they have a problem that they are not satisfied their bodies, they keep on changing some kind of a surgeries. It has started, पहले क्या होता था, only for the fat, you can say fat decrease करने के लिए, पर आप सोचो eyes के लेकर, lips के लेकर, eyelashes, पता नहीं क्या क्या आ चुका है अब तक। You understand, हर एक छोटी minor चीजों की सर्जरी हो रही है and we are not able to, we have all become a plastic body. That is being done. So it is all about the plastic body and all that. फिर इससे eating disorder, कई लोग होते हैं मैंने पतले होना है, उसकी वजह से खाना ही छोड़ देते हैं। That is eating disorder which is being happened due to these issues, and this is not womanhood. Is when you are appearing the way you are, you should appreciate it out. And beauty pageants should encourage the womanhood. That is the way female is, they should appreciate her out. That is what beauty pageants should be. Clear? अब positive क्या है? Confidence मिल रहा है सबको। मेरे को नौकरी मिलेगी अगर मैं अच्छे से विन करती हूँ। कई लेडीज को स्कॉलरशिप्स मिलती हैं उनको अगर दे विन सम काइंड ऑफ अ स्कॉलरशिप्स। क्लियर? उससे क्या क्या आ जाता है, गोल ओरिएंटेड बनते हैं लोग। इफ आई हैव टू विन सम कंपटीशन, आई विल बी गोल ओरिएंटेड, आई वर्क हार्ड फॉर दैट। सो नाउ women are not bound, they can showcase their, you can say they can become talented, they have the boost of the confidence. बहुत ज्यादा आपके competitions of many models, they actually got the films after this only, after the beauty pageants. So employment generation का भी एक टॉपिक आ जाता है ये। और इन्होंने सब ने, मैं मुझे समझ नहीं आ रही, हाउ मेनी ऑफ यू, आप लोग क्या कर रहे थे, रिपीट कर रहे थे। ये तो एक पॉइंट था, नो एजेंडा ऑफ कॉन्टेस्ट होता है तो मोटिवेशन टू डेवलप, ये पॉइंट ना कॉन्ट्राडिक्टरी था खुद में। इफ यू आर टेलिंग एट वन रन कि एजेंडा नहीं है उसका, एक तरह से बोल रहे हो कि मोटिवेशन है, एजेंडा तो हर ब्यूटी कॉन्टेस्ट का कुछ ना कुछ तो होता है। आप ये नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, उसका ऐसा कोई एजेंडा नहीं कि वो उनको ठेस पहुंचाए उनकी ब्यूटी को। नेगेटिव देखो जब भी स्टार्ट करते हैं ना ऐसे कॉन्टेस्ट या कुछ, जैसे मैंने आपको बोला पॉजिटिव, फिजिकल, सोशल, मेंटल, ये सारी चीजें कर लिया करो, एक तो लिख लिया करो, उससे मैच करके देखा करो कौन सा हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा। उसके बाद ब्यूटी कॉन्टेस्ट की अवेयरनेस पे जाओ। ब्यूटी कॉन्टेस्ट कितनी तरह के होते हैं। फर्स्ट ब्यूटी कॉन्टेस्ट पर ओनली फॉर, यू कैन से, द वुमेन ऑफ द यंग एज ग्रुप, नाउ इट इज फ्रॉम मिसेस आल्सो टू ओल्डर जनरेशन टू यंगर जनरेशन। अब तो छोटे छोटे बच्चों के भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट आते हैं, देखे होंगे आपने, ठीक है। अब छोटे बच्चों की फोटो शूट्स होती हैं। सो छोटे बच्चों की फोटोशूट जो होती है वो क्या होती है, वो भी एक तरह की, आप बोल सकते थे इंट्रोडक्टरी लाइन, ये इंट्रोडक्शन में काम आ सकते थे आपके, पर किसी ने बोला नहीं। कंक्लूजन में हमेशा आपसे याद रखो, मैं कल फिर से कंक्लूजन कराऊंगी हर जीडी का, सबसे न्यूट्रल एंडिंग होती है जीडी में, और न्यूट्रल ही वो चलती है, मतलब कि पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी। एक लाइन ही याद कर लो, एवरी कॉइन हैज गॉट टू साइड्स, a radar cannot, or you can say a boat cannot sail without a radar, so obviously these two things are meant to be together. क्लियर होगा? एक आधी कोट ही याद कर लो भाई अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तो।
मैं तुम्हें 3-4 कोट्स बता देती हूँ, उसको 2-2 कोट्स, आज 2 कोट्स याद कर लो, कल 2 कोट्स और बता दोगी, वही याद करके वही बोल देना भाई, अगर नहीं बोलना। और लास्ट चीज, इनफॉर्मल स्लैंग मत बोलना, आउट हो जाओगे। बहुत अच्छे से वे करके बोलना है। कई बार तुम क्या करते हो, यही होता है, जीडी में खो जाते हो और तुम कुछ भी बोलते हो। डन। मैम जैसे आपने वो पॉइंट यस बोला था मैम। लास्ट में कि हम नेगेटिव थिंग्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और पॉजिटिव थिंग्स को हम फॉलो कर सकते हैं, इस प्रकार से बोल सकते हैं। जैसे कंक्लूजन में बात हुई थी, आपने कंक्लूजन में लाइन बोली थी कि नेगेटिव थिंग, जो भी नेगेटिव पॉइंट्स है उनको हमें इम्प्रूव करना है, और जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उनसे लर्न टाइप करना से है। कुछ। हाँ, दैट इज फॉर एवरी, हर जीडी के लिए आ जाता है। लाइक एवरी यू कैन से टॉपिक हैज गुड पॉइंटर्स एंड बैड पॉइंटर्स आल्सो, एंड वी नीड टू लर्न फ्रॉम द गुड पॉइंटर्स एंड इंप्रूव अवर बैड पॉइंटर्स, ओनली देन वी कैन डू दैट। तो ये कुछ लाइंस है जो आप कोट करते जाओ, लिखते जाओ, हर एक में डाल के देखा करो। तुम्हें मैं क्यों बताती हूँ, ताकि तुम एट द लास्ट प्रैक्टिस कर सको। तुम लोग करते ही नहीं हो भाई। मैं तो आज कंक्लूजन सुन के हैरान हूँ कि तुम्हारे कंक्लूजन जब तक तुम जीडी कर रहे थे। डिबेट मत करो भाई, कंक्लूजन को कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन को इंट्रोडक्शन। सबसे कल इंट्रोडक्शन कराऊंगी, सबसे मैं कंक्लूजन करा रही हूँ। मैम आज ये हुआ ना, आपने कहा था कि पहले एक देखा वो, तो हमने कितने पॉइंट लिखे नहीं कि हमें क्या क्या कंक्लूड करना है, तो नोट डाउन नहीं करा। फिर आपने कहा आखिर में आज सब करेंगे कंक्लूड, तो सबको याद नहीं रहेंगे इसलिए। इट शुड बी, दैट इज व्हाट इज प्रेजेंस ऑफ यस माइंड, मैम। तुम्हारा कितना प्रेजेंट ऑफ यस मैम। माइंड। ठीक है, ये नहीं होता कि तुम लोग ऑन स्पॉट रेडी होने चाहिए कि हाँ मैंने कंक्लूड करने के लिए दिया। तभी मैंने सबसे पहले अभिषेक को दिया था, क्योंकि उसको तो मैंने बोला था ना, तुम लोग के पास यस 1-2 मैम। मिनट थे तब तक। और ऑन यस मैम। स्पॉट यही चीजों से याद कर लो। तुमने कितनी लाइन, 10 लाइनें बोलनी है, नहीं बोलनी। यस मैम। ठीक है, ये थोड़ा मैं इंप्रूव करो। जैसे आज टॉपिक बहुत कंसाइज था कि वुमेनहुड पे, वो भी सिर्फ ब्यूटी कॉन्टेस्ट पे, तो बहुत कम पॉइंट थे हमें हमारे पास इसके बारे में, नॉट इसलिए लेस बीच में। पॉइंट। अगर तुम पहले फिजिकल को डिस्कस करते, फिजिकल हेल्थ के बारे में डिस्कस करते, पहले सारा फिजिकल हेल्थ पे डिस्कशन होता, फिर यू कैन से ठीक। वन एडेड आउट। अजय बोलता कि आई थिंक अपार्ट फ्रॉम फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ इज आल्सो पुट इनटू प्रेशर, एंड आई थिंक वुमेन दे आर कमिटिंग सुसाइड्स। आपने रील्स देखी हैं बहुत ज्यादा। द यू कैन से द पीपल हु आर फ्रॉम वेरी यंग जनरेशन, दे आर इनटू कि मैंने बाद में उसमें जाना, दे आर ऑलरेडी कटिंग देयर डाइट्स एंड ऑल दैट। आजकल बच्चे जिम जा रहे हैं, बच्चे डाइट कट कर रहे हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं नेक्स्ट। We have seen lots of deaths बहुत ज्यादा हो रही है अगर ड्यूरिंग द सर्जरीज एंड ऑल दैट। पेजेंट्स क्या पे आउट करते हैं, कई जो हैं दे गर्ल्स थे आर अदर वुड से इट आउट, काउंटर करता है, अभिषेक काउंटर कर रहा है कि आई डोंट थिंक सो, आई डोंट एग्री विद सच पॉइंटर्स, दे आर ट्रू, बट द बेस्ट ऑफ ऑल इज दे आर जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आल्सो। बहुत एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रही है। तो इस तरह से तुम्हें कट, ये तुम लोग होते हो कि मैंने जो पॉइंट लिखा है मैं बोल दूं, मैं फ्री हो जाऊं पॉइंट बोल के, मैंने कर लिया जीडी कंप्लीट। ही नहीं होता। अप्रोच चेंज करो अपनी जीडी की। और सेम फॉर जीडी, अपना नहीं होता कि मैंने बोल दिया मेरा काम खत्म। मेरा काम खत्म होगा पढ़ाने से, तुम्हें तुम्हारा तो शुरू होता है। ठीक है, जीडी को जीडी की तरह लो, मजे से अटेंड करो और हर चीज से सीखो कि क्या क्या मैंने पॉइंट्स लिखने हैं, करने हैं। विमेन पे टॉपिक आए तो बॉयज यू शुड हैंडल इट नाइसली। ठीक है, और आएगा कोई ना कोई विमेन पे आ गया, किसी ना किसी पैनल में तो फंसोगे, तब बोलना कि विमेन पे टॉपिक ही नहीं है लड़कों के पास। ठीक है, पॉइंट तो सेम रहते हैं। लाइक देयर वाज अ टॉपिक वी लास्ट डेड, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू अटेंडेड, मेनी ऑफ यू आर न्यू, कि विमेन रिजर्वेशन कितनी अच्छी है किसी भी जॉब्स के लिए, क्या उससे इक्वालिटी बढ़ रही है या कम हो रही है। तो ऐसे तो विमेन का सेम आ जाएगा, कॉन्फिडेंस वाला सेम रहेगा, एम्प्लॉयमेंट वाला सेम रहेगा। इसमें से पॉइंट लिखा करो, डिकोड करा करो कौन से मैच होते हैं। ठीक है, और इंट्रोडक्शन में सेम रखो विमेन के लिए। जब भी विमेन का टॉपिक आ गया, विमेन वर कन्फाइंड टू द 4 walls and now they are being run out of it, and now they are able to make their career in different options, and one is the beauty pageants that has given them marvelous opportunities. Same line है, different वार दो। ट्रिक्स याद रखो जीडीजीटी करने का। मोर देन स्मार्ट यू कैन से नॉलेज, इट इज ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क। और रेगुलर कर जाओ। नवीन ने बहुत टाइम बाद लगाया, नवीन इसलिए भी मुझे लगता है कुछ बैरियर्स आ जाते हैं। ठीक है, रेगुलर हो। डन, चलो, ऑल द बेस्ट गाइस, मीट यू टुमारो, बाय। मैम या अजय, मैम इसका रिकॉर्डिंग्स कहाँ अवेलेबल है मेरे? आई थिंक पैनल पे होता है, यू नीड टू चेक इट टू आस्क सम एग्जीक्यूटिव, आई डोंट नो, यू जस्ट कॉल एंड आस्क देम, मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं बता देंगे। मैम मैंने 2 ही पॉइंट आप दिया था, वो सही था ना? नहीं, पॉइंट्स अच्छे थे, पॉइंट्स में किसी की गलती नहीं थी, क्योंकि तुम पॉइंट सारे जने ठीक बोल रहे थे। गलती ये थी कि तुम एक ही पॉइंट को बार बार बोलते रहते हो, रेपिटेशन शुरू हो जाती है, वो गलती होती है। पॉइंट्स किसी के गलत नहीं थे आज, एवरीवन वाज टेलिंग वेरी गुड पॉइंटर्स टुडे। मैम ज्यादा पॉइंट थे नहीं आज बोलने को, ऐसा लग रहा था ज्यादा पॉइंट नहीं है। ये तभी जब मैं विमेन का टॉपिक देती हूँ, हमारे पास पॉइंट्स ही नहीं होते हैं बोलने के लिए, ये तो हमेशा की बात है। कल फिर से एक विमेन का दूंगी, तब देखना कि पॉइंट्स है कि नहीं है। ठीक है, बैंक मर्जर्स या विमेन, लेट्स सी कौन सा मैं देती हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं और टी लगाते हैं 4 बजे। ओके गाइस, बाय। ओके मैम, थैंक यू।